गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेशन एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर्बिसाइड। इससे पहले कि हर्बिसाइड क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग केमिकल कंट्रोल में जस्ट एज ए डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअली में हर्बिसाइड क्या होता है। तो हर्बिसाइड हम लोग एक डेफिनेशन इस बुक में है, मैं जो नोट्स डाल रही हूँ। हर्बिसाइड आर द केमिकल कैपेबल ऑफ किलिंग और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। In the last 40 years or so, man has greatly improved upon his weeding efficiency by supplementing the conventional weeding method with herbicide. It has been saved farmer of undue repeated intercultivation and hoeing and has helped him in obtaining satisfactory weed control. ठीक है, तो इसमें वी हैव ओवर 1501, मतलब अगर हम लोग घर में एक केमिकल है जो कि प्लांट को, वीड को, हर्ब्स को, जो अनवांटेड प्लांट है उसको किल करता है, उसके बाद वी हैव 1501 herbicide in common use for selective and non-selective weed control in different area. These chemicals vary greatly in their molecular structure, mobility within plant, selectivity, fat in soil, and response to environment. Important property and uses of some common herbicide in use today are there. So herbicide many capable have so high codes of selectivity to certain crop, killing the weeds effectively, but proper selection of the herbicide, its rate, time, method of application very important. Benefits of herbicide were developed in the Western world primarily to overcome the shortage of farm labor of weeding. तो इसका benefits क्या है कि सबसे पहले कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में प्राइमरली टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ द लेबर और इसमें है। तो herbicide can be employed to control weed, azimers, soil to eliminate weed, ठीक है। तो ये सारा herbicide का, herbicide can kill many weeds that survive as mimicry. Herbicide control does not dictate strict raw spacing. Herbicide bring about longer lasting control of perennial weeds. Herbicide conventional to use, ठीक है। अब लिमिटेशन में है, इन herbicide control there is no automatic signal to stop a farmer who may apply the chemical inaccurately till he see the result in the crop spread or in the rotation. तो ये हर्बिसाइड क्या है, कैसा मेरिट्स है। तो हर्बिसाइड का तो हम लोग इसके बाद हम लोग इसलिए इसको पहले हर्बिसाइड देख रहे हैं। केमिकल कंट्रोल में लिमिटेशन में है कि इन हर्बिसाइड का नो ऑटोमेटिक सिग्नल टू स्टॉप हु मे बी अप्लाइंग द केमिकल इनएक्यूरेटली रिजल्ट क्रॉप स्प्रे, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ऑटोमेटिक कि सिग्नल टू स्टॉप द फार्मर अप्लाइंग केमिकली इनएक्यूरेटली, हम लोग ये नहीं, कभी कभी हर्बिसाइड इनएक्यूरेट, even herbicide are applied accurately, this may interact with environment to produce unintended result. Herbicide drift wash run कम में ये environment friendly तो नहीं होता है, एक्चुअली में ये तो केमिकल ही है। डिपेंडिंग अपॉन द diversity in farming, a variety of herbicide must be stocked on a farm to control weeds in different field on a contrary physical control. Herbicide control requires considerable skill on the part of the user. He must be able to identify his weed and possess considerable knowledge about the herbicide. Herbicide का proper एक सही knowledge होना चाहिए। In herbicide, treated soil, usually crop failure, cannot be made up by planning on different crop of choice. The selection of replacement crop has to be based on its tolerance to the herbicide already applied. तो हर्बिसाइड क्या है, केमिकल है जिसका अपना लिमिटेशन और अपना एडवांटेज है हर्बिसाइड का, ठीक है। तो ये जस्ट हम लोग ये देखें, उसके बाद हम लोग को ये सब नहीं देखना है, हम लोग को सीधे जंप करना है हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो हर्बिसाइड इट इज अ केमिकल वो यूज टू किल सम टारगेट प्लांट
प्रिंसिपल ऑफ केमिकल वीट क्या है? द सिलेक्टिविटी एग्जिबिट बाय सर्टेन केमिकल टू कल्टिवेटेड क्रॉप इन कंट्रोलिंग इट्स एसोसिएटेड वीट without affecting the crop from the basis for the chemical weed control. Such selectivity may be due to differences in the morphology, differential absorption, differential translocation, and differential deactivation. Classification of herbicide based on method of application. पहला है soil applied herbicide जो कि रूट में डायरेक्ट लगाएंगे जिसको फ्लूरोक्लोरोलिन बोलते हैं। फिर है फ्लोफोलिएज में अप्लाई करने वाला ग्लाइकोफोसेट और पैराक्विट। बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन सिलेक्टिव herbicide or non-selective herbicide. Herbicide is considered as a selective when it mixed growth of the plant species. It kills some species without injuring the others. Non-selective, it destroys majority of treated vegetation. तो नॉन सिलेक्टिव का मतलब पर्टिकुलरली जिस हर्ब्स के लिए या वीट के लिए डाल रहे हैं उसी को अफेक्ट करेगा। नॉन सिलेक्टिव डिस्ट्रॉय मेजोरिटी ऑफ ट्रीटेड वेजिटेशन। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन मोबिलिटी कॉन्टेक्ट हेर्बिसाइड और ट्रांसलोकेटर। मतलब कॉन्टेक्ट हेर्बिसाइड किल द प्लांट पार्ट विथ विच कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लाइक पैराक्विट, मतलब कॉन्टेक्ट में आया तो उसी को बस करेगा। ट्रांसलोकेशन विच टेंड्स टू मूव ट्रीटेड प्लांट टू अनट्रीटेड एरिया, तो ये हो गया ग्लाइकोफोसेट। उसके बाद बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन प्री प्लांट एप्लीकेशन, application of herbicide before the crop is plant or soil, and soil application as well as foliar application is done here. For example, fluorochlorine can be applied to the soil and incorporate before sowing rain-fed groundnut, while glyphosate can be applied on the foliage of perennial weeds like cypress rotundus before plant of any crop. अब प्री एमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड बिफोर क्रॉप और वीड हैज इमर्ज। प्री एमरजेंस अपने मतलब प्री प्लांट एप्लीकेशन, हमें बिफोर क्रॉप प्लांट और सोल। और इमरजेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड बिफोर क्रॉप और वीड हैज इमर्ज। इन केस ऑफ एनुअल क्रॉप एप्लीकेशन इज डन आफ्टर द सोइंग ऑफ द क्रॉप बट बिफोर इमरजेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सॉइल एप्लीकेशन स्प्रेइंग ऑफ एट्राजिन 3 days आफ्टर शुगर केन के टर्म्ड एज प्री इमर्जेंस, मतलब बिफोर इमर्जेंस ऑफ सीड या जो भी चीज प्लांटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। उसके बाद पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड एप्लीकेशन आफ्टर इमर्जेंस ऑफ क्रॉप और वीड is referred as post emergence application when the weeds grow before the crop plant have emerged through soil are killed with herbicide, then it is called early post emergence like 2,4-D। ये parasitic weeds trigger को sugarcane is post while spraying paraquat to control emerge weed after 10 to 15 days of planting of potato। अब early post is मतलब another application of herbicide in the slow growing crop like potato, sugarcane 2 to 3 after sowing to classified early post। अब based on molecular structure inorganic compound और organic compound, formulation है herbicide का like herbicide in their natural state may be solid, liquid, volatile, non-volatile, मतलब अलग अलग फॉर्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ हर्म इज टू हैंडलिंग एंड हाई कंट्रोल एक्टिविटी ऑन द टारगेट प्लांट। नीड फॉर प्रिपेयरिंग herbicide formulation to have product with physical property suitable for use in variety of types of application equipment और प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन देखें बेस्ड ऑन स्टेज, बेस्ड ऑन ये है। तो उसके बाद है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, और इसका अब हम लोग हम लोग इजी यूटिलाइज कर सके कैसे हर्बिसाइड को डाल रहे हैं। तो प्रोडक्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टी in a variety of types of application equipment and condition to prepare a product which effective and economically feasible to use। तो इसमें टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है, एक तो इमल्सिफायबल कंसंट्रेट जो ईसी है, वेटेबल पाउडर, ग्रैनुलर एंड वाटर सोल्यूबल कंसंट्रेट, और कंसंट्रेटेड herbicide formulation containing organic solvent and adjuvant to facilitate emulsification with water। ठीक है,
तो इमल्सन मतलब कैसा एकदम दूधिया दूधिया जैसे जैसे चूना को डालोगे तो कैसा एक इमल्सन बनता है, तो उस तरह का वो होता है जो कि ब्यूटाक्लोर बनाएगा। फिर ये वेटेबल पाउडर है, concentrate a herbicide absorbed by inert carrier together with added surface active agent, and the material is finely ground so that it may be form suspension when agitated with required volume of water। तो एब्जॉर्ब बाय इनर्ट कैरियर, एक इनर्ट कैरियर लेते हैं उसमें हर्बिसाइड को मतलब पाउडर जैसा होगा, इनर्ट कैरियर में वो हर्बिसाइड को डाल के जैसे पाउडर हो गया तो वो वेटेबल पाउडर हो गया जो कि अट्राजिन हो गया। ठीक है, उसके बाद इनर्ट मटेरियल क्या है, ग्रैनुलर शेप का होगा, जैसे क्ले हो गया, वर्मी क्ले, उसमें हम लोग हर्बिसाइड को इनर्ट कर देंगे। उसके बाद है वाटर सोल्यूबल कंसंट्रेट में पैरागन। अब ये हो गया, इसमें आ गया मेथड ऑफ एप्लीकेशन में कर रहे हैं, स्प्रेइंग ब्रॉडकास्टिंग फैक्टर इन द मेथड, वीट क्रॉप सिचुएशन, टाइप ऑफ herbicide, mode of action, selectivity, environmental factor, cost of convenience, depending upon the target site, herbicide classified, soil applied herbicide, foliage applied foliar herbicide, soil application, surface band, fumigation, herbigation। ठीक है, तो हाँ, फ्यूमिगेशन में हम लोग फर्टिलाइजर वाइटर डालते हैं, हर्बिगेशन में हर्बिसाइड वाटर डालेंगे, ब्लैंकेट स्प्रे, डायरेक्टेड स्प्रे, प्रोटेक्टेड स्प्रे, स्पॉट स्प्रे। तो सॉयल एप्लीकेशन हर्बिसाइड, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ एप्लीकेशन है कि हाउ टू अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अभी तुम लोग को उतना नहीं देखना है क्योंकि तुम लोग को सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना है और यहाँ फॉर्मुलेशन तक, इससे आगे अभी तुम लोग को नहीं देखना है मेथड ऑफ एप्लीकेशन में, बस इतना अभी देखो, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे। और कोई भी डाउट होता है तो इसको हम लोग अभी फोरम में देखेंगे और हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ओके, देन थैंक यू।